हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे इस 1% क्लब में स्वागत है। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यानी मेटल के रासायनिक गुणधर्म। मेटल केमिकल के साथ कैसे और क्यों रिएक्ट करेगा इसके बारे में जानने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसका सीधे सीधे मतलब होता है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट किस प्रकार होती है, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल कह सकते हैं। हियर वी हैव ए एग्जांपल, सोडियम atomic number 11. That means sodium have a 11 electron and 11 proton. So these 11 electron are arranged in this way: first shell 2, second shell 8, 2 plus 8 10, and last shell consists 1, that is 2 8 and 1 11. Clear? Next property is how to find out the substance is metal. Here we have one clue. So most of the metal consist 1, 2 or 3 electron in their last shell, most of the, not all. Clear? Like example, magnesium atomic number 12. So first shell 2, second shell 8, last shell 2. So here last shell consists 2 electron. Aluminium first shell 2, second shell 8, last shell 3, that is last shell consists 3. Chemical property of metal is formation of cation, that is formation of ion. Clear? So here metal have a tendency to lose valence electron. Metal के पास tendency है कि valence electron, that means the electron which is in last shell, metal can easily lose. For example, sodium. Clear? So sodium Na atomic number 11. Clear? So this sodium have a 11 atomic number, that means 2, 8, 1. This is electronic configuration. Clear? This is electronic configuration. So sodium Na, first shell 2 electron, second shell 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, and last shell 1 electron, that is 2 8 and 1. So these last shell electron, that is valence electron, sodium will easily give to the other. Clear? That's why we get 2, 8, that is 1 electron is less, therefore we have a sodium have a positive charge. Got it? Clear? So now look here. So metal have a tendency to lose valence electron, that why metal get positive charge, and that positive charge called cation. Clear? So first sodium example, 2 8 1, 1 electron will lose, so sodium get plus charge, plus 1 electron. Clear? So sodium is converted into sodium ion. Next, magnesium atomic number 12, 2, 8, 2. This is electronic configuration. These last shell 2 electron will easily lose. So magnesium get plus 2 charge. Electronic configuration 2, 8. Okay, these last shell 2 electron they gave. That wise there is a deficiency of 2 electron. Therefore there is a plus 2 charge. Magnesium is converted into magnesium ion. And next example is aluminium atomic number 13, first shell 2, second shell 8, third shell 3, 2 8 3, that is 13. So these last shell 3 electron aluminium will easily lose, therefore aluminium get plus 3 charge, plus 3 electron aluminium gave to the other. हमारे साइकिल की रिम, पुराने बर्तन, यहाँ तक कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अगर गौर से देखा जाए तो हमें पता चलेगा कि इनका पुराना कलर और अब का कलर, इसमें बहुत सा अंतर है। ये चेंज क्यों हुआ और ये चेंज होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो उसका आंसर हमें मिलेगा ऑक्सीजन। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो कुछ केमिकल बदलाव होते हैं और उस बदलाव का नतीजा हमें उनके रंग में दिखता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ एग्जाम्पल के साथ। तो जब हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो उससे हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड। यानी एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम मेटल, राइट, मैग्नीशियम मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंपल फॉर्म में कहा जाए तो मैग्नीशियम की रिबन ले ली, क्लियर, उसको अगर हमने बर्न किया तो वो रिबन जब बर्न होगी तो उसको बर्न करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, क्लियर, वी नो दैट सब्सटेंस विल बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वो जब बर्न होगी तो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, दैट ऑक्सीजन इट विल टेक। तो जो पाउडर मिलेगी बर्न होने के बाद, दैट पाउडर इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? तो हमें मिल गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, that is 2 mg magnesium plus O2 gives us 2 MgO magnesium oxide। अब ये जो मेटल ऑक्साइड हमें मिला, ये मेटल ऑक्साइड नेचर में होगा बेसिक, मतलब इसका pH होगा 7 से ज़्यादा। इसमें
रेड लिटमस पेपर होगा ब्लू। क्लियर? तो यहाँ तक पता चला। उसके बाद अब ये मेटल ऑक्साइड जो बना, मतलब मेटल के साथ ऑक्सीजन ऐड होके जो बना, उसके साथ अगर हमने एसिड ऐड किया, क्लियर, या उसकी रिएक्शन अगर हमने एसिड के साथ की तो क्या होगा? तो हमें मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर, यानी नमक और पानी। एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। तो ZnO यानी जिंक ऑक्साइड, जिसे हम मेटल ऑक्साइड भी कह सकते हैं, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, उससे क्या हुआ? उससे मिला हमें जिंक क्लोराइड ZnCl2 यानी सॉल्ट प्लस H2O वाटर। अब ZnCl2 इसे सॉल्ट क्यों कहा? बिकॉज ओके, एक चीज़ ध्यान में रखनी कि H प्लस और OH माइनस ये दोनों नहीं है। H प्लस और OH माइनस ना होते हुए भी प्लस और माइनस चार्ज है तो उसे हम कहेंगे सॉल्ट। तो यहाँ देखिए Zn प्लस और Cl माइनस, क्लियर? तो प्लस है लेकिन H प्लस नहीं, माइनस है लेकिन O माइनस नहीं है, तो वो होगा सॉल्ट। तो ZnCl2 इज अ सॉल्ट। नेक्स्ट थिंग इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। सो क्या होगा जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होगा? क्या इससे बहुत ज़्यादा बदलाव आएगी? क्या इससे मेटल की प्रॉपर्टी चेंज होगी? सो आंसर इज नो। When most of the metal react with the water, it will not show any observable change. But few metal, like example sodium and potassium, when they react with water, they show vigorous reaction and produce their hydroxide and H2, that is hydrogen gas.